میں ایک ایپ بنا رہا ہوں جو نماز کی پابندی کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ جی غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ رائکا بیٹا کیا ہوا؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں، اللہ کا شکر۔ آپ کو کچا پھل نہیں توڑنا چاہیے اور آپ نیچے گر گئیں، اس سے آپ کے کپڑے گندے ہو گئے۔ کپڑے گندے ہو گئے تو کیا ہوا؟ بیٹا حدیث کے مطابق صفائی نفس ایمان ہے، تو ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ بابا، یہ حدیث تو ہماری ٹیچر نے بھی بتائی ہے۔ بیٹا آپ کب سے یہاں ٹائم پاس کر رہی ہیں؟ آپ کو تو اپنا ہوم ورک کرنا تھا۔ جی بابا، وہ تو میں کر ہی لوں گی۔ بیٹا جس کام کا جو وقت ہے وہ کام اسی وقت پر ہونا چاہیے۔ زندگی میں ڈسپلین ہونا بہت ضروری ہے۔ غلام رسول کو دیکھیے کیسے سارے کام وقت پر کرتے ہیں۔ جی بابا۔ بابا میں اسید بھائی کے گھر جا رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے بیٹا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں ایک زبردستی چیز بنانے جا رہا ہوں۔ جی بالکل مجھے پتا ہے اسید بھائی آپ کیا بنانے جا رہے ہیں۔ اچھا تو پھر بتائیں میں کیا بنا رہا ہوں؟ ایک ایسی ڈیوائس جو ببلو اور فیضان بھائی کی کرنٹ لوکیشن بتا سکے، کیونکہ یہ دونوں ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں۔ نعمان بھائی آپ نے تو غیبت کر دی، اور غیبت تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا جی غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ او آئندہ غیبت نہیں کروں گا۔ میں ایک ایسی ایپ بنا رہا ہوں جو ہر نماز کے بعد ہمیں ریمائنڈ کرائے گی۔ یعنی ہر نماز کے وقت موبائل میں الارم بجے گا؟ نہ صرف یہ بلکہ ڈیلی روٹین کے شیڈیول کو بھی مینٹین رکھنے میں ہیلپ فل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں ایک ایپ بنا رہا ہوں جو ٹائم مینجمنٹ اور نماز کی پابندی کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت کمال کی ایپ ہوگی۔ لائف میں سکسیسفل ہونے کے لیے ڈیلی روٹین کا شیڈیول سیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور نماز کے بارے میں حدیث ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے اگر بندہ وقت پہ نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ انشاءاللہ آپ کی ایپ سکسیسفل رہے گی۔ اس ایپ کی ہم سب کو ضرورت ہے، خاص طور پر ببلو اور فیضان بھائی کو تو بہت زیادہ ہی ضرورت ہے۔ کتنی دیر لگا دی ان دونوں نے، اب تک نہیں پہنچے۔ دونوں آتے ہی ہوں گے۔ ویسے ان دونوں کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اللہ خیر کرے۔ اوف، یہ کیا ہو گیا؟ اوہو، اسے بھی ابھی اترنا تھا۔ وہاں سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، اور اب یہ چین چڑھے گی بھی بہت مشکل سے۔ آپ کوشش کریں چڑھ جائے گی۔ میرے تو ہاتھ بھی بہت گندے ہو چکے ہیں۔ اس کی خیر ہے، آپ ایک بار چین تو چڑھا لیں۔ یس، ہو گئی، بس اب جلدی چلیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسید بھائی، کیا سب کو چپس کھانے کے لیے بلایا تھا؟ ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، آپ آئے نہیں تو ہم نے سوچا کچھ کھا لیں۔ تو پھر ہم بھی کھاتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ کتنے گندے ہو رہے ہیں۔ وہ سائیکل کی چین اتر گئی تھی۔ اچھا تو پہلے ہاتھ تو دھو کر آئے، پھر میں اپنی کمنگ ایپ کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہم ابھی آئے۔ پیارے بچوں، ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی لائف کو ڈسپلن کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ خاص طور پر نماز وقت پر پڑھنی چاہیے۔ اور آپ دعوت اسلامی کی نماز سے متعلق پریئر ٹائمز ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس ایپ سے آپ کو انشاءاللہ زبردست انفارمیشن حاصل ہوگی۔ ابھی میں آپ کو ایک جادو دکھاؤں گا۔ ہمیں بھی پتا ہے ٹرکس ہوتی ہیں، جادو وادو نہیں ہوتا۔ اچھا ٹرکس، اگر میں آپ کو کبوتر نکال کے دکھا دوں تو؟ اچھا دکھائیں۔ یہ دیکھیں۔ یہ کیا؟ واہ بھائی واہ، ببلو بھائی کا جادو۔ یہ میں نے نہیں کیا۔ آپ نے ہی تو دکھایا ہے جادو۔ نہیں نہیں، یہ خدا کی گرا ہے۔ یا اللہ خیر، یہ تو زخمی ہے۔ یہ اڑ کیوں نہیں رہا؟ آپ دیکھ نہیں رہے، اس کا ایک پر ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ رحم فرمائے،
आप इसे यहाँ लेकर आए, इसे पानी पिलाते हैं। जी बिल्कुल। बेज़बान जानवर की हमें मदद करनी चाहिए। गुलाम रसूल भाई, आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है? जी है। जल्दी से लेकर आएं। अल्लाह पाक की तौफीक से आज हमने एक नेकी की है कि बेज़बान परिंदे की मदद की। हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक एक दूसरे पर रहम ना करो। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम सब एक दूसरे पर रहम करते हैं। फरमाया, ये मुराद नहीं है कि तुम अपने साहिब मसलन दोस्त या भाई पर रहम करो, बल्कि उससे रहमते आमा मुराद है, यानी तमाम मखलूकात के हक में रहम दिल हो जाओ। जानवरों पर भी रहम करो, परिंदों पर भी रहम करो, चूंटियों पर भी रहम करो, गर्ज हर मखलूक के हक में रहम दिल बन जाओ। मगर गुलाम रसूल भाई, बबलू भाई जादू से कबूतर कैसे लेकर आए थे? अरे भाई, मैंने कोई जादू नहीं किया था। गुलाम रसूल भाई, आप ही बताइए कि जादू नहीं होता ना? बबलू भाई के इस अमल के दौरान तो इत्तेफाक से कबूतर उड़ के आ गया था। बाकी बबलू भाई जिस तरह कर रहे थे उस तरह काफी लोग करते हैं। कोई कागज को नोट बना देता है, कोई चीजों को गायब कर देता है। इस तरह की और भी बहुत सी चीजें लोग कर कर दिखाते हैं जो सिर्फ हाथ की सफाई होती है और नजरें धोखा खा रही होती हैं। मगर जादू होता है और अल्लाह पाक की आखिरी किताब कुरान पाक से जादू के वजूद का पता भी चलता है। क्या वाकई गुलाम रसूल भाई? कुरान पाक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में ये बयान हुआ है कि फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगरों को जमा किया था। उन जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर डाली थी तो वो जादू से अज़दहे यानी बड़े मोटे सांप बनकर दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म से अपना असा यानी स्टिक जमीन पर डाल दी थी तो वो उसी वक्त एक बहुत बड़ा सांप बनकर उन रस्सियों और लाठियों को निगलने लगा। और ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। मौजज़ा क्या चीज होती है? किसी नबी अलैहिस्सलाम से ऐसा अजीबोगरीब काम जाहिर हो जो आम तौर पर पॉसिबल नहीं होता, वो मौजज़ा कहलाता है और ये नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे होने की दलील होता है। जबकि जादू करना बहुत गुनाह की बात है। अल्लाह पाक हमें सच्चा और अच्छा मुसलमान बनाए। आमीन। उड़ गया, उड़ गया। ओहो, उसैद भाई, इस दफा आपके एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ तो होनी ही थी। बबलू भाई, आपने नजर जो लगा दी। अगर किसी अच्छी चीज को देखकर माशाअल्लाह कह दिया जाए तो नजर नहीं लगती। मगर फैजान भाई, हमें ऐसे ही किसी के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि इससे दिल आजारी हो सकती है। सुन लिया फैजान भाई, चलें अब सॉरी करें। सॉरी बबलू भाई। उसैद भाई टेक्निकल वर्क करते हैं और इन कामों में ये तो होता है। जी बिल्कुल। ठहरिए उसैद भाई, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो भी अहम काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर नहीं शुरू किया जाता वो अधूरा रह जाता है। तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अपना जहाज उड़ाइए, इंशाअल्लाह आप सक्सेसफुल रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उड़ गया, माशाअल्लाह। उसैद भाई, आसमानों में उड़ने वाले जहाज बहुत स्पीड से उड़ते हैं ना? कितनी ज्यादा आवाज होती है उन जहाजों की। ये तो कुछ भी नहीं है। रॉकेट तो इससे भी तेजी के साथ उड़ता है। ज़ू। मगर इस दुनिया की फास्टेस्ट थिंग लाइट है और रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ओह अच्छा, हम इस रफ्तार को तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। मगर इस रफ्तार से भी तेजी के साथ सफर हो चुका है। वो कैसे? जब हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मेराज पर तशरीफ लेकर गए थे तो लाखों बल्कि करोड़ों सालों का सफर रात के बहुत थोड़े हिस्से में तय कर लिया था। सुभान अल्लाह। गुलाम रसूल भाई, मुझे भी इस वाक़े के बारे में सुनना है, प्लीज बताइए। घर चलिए फिर बताता हूँ।
واقعہ معراج کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ رجب شریف کی 27 تاریخ کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو اچانک چھت کھل گئی تو فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نیچے آئے. اس کے بعد جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک سفید جانور کو حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے. براق؟ اس جانور کے بارے میں تو ٹیچر نے بھی بتایا تھا. بہت تیز سفر کرتا ہے یہ جانور. جی بالکل. پھر براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویلکم کرنے کے لیے تمام انبیاء کرام موجود تھے. یہاں مسجد اقصی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں اور رسولوں کو نماز پڑھائی. سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. پھر نور کی سیڑھیوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان کی طرف تشریف لے گئے. It's amazing. پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیر فرمائی اور بہت کچھ دیکھا. اور پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام کے بازو پر سفر فرمایا. سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ 6 آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھے تو جبریل علیہ السلام وہی ٹھہر گئے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے کیسے گئے غلام رسول بھائی؟ بہت جلدی ہے آپ کو، تھوڑا صبر کر لیں. پھر رفرف نام کی سواری پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آگے تشریف لے گئے اور پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے ملاقات کی. سبحان اللہ. اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا اور ملاقات کی اور اس وقت وہاں تیسرا کوئی موجود نہ تھا. سبحان اللہ. اس ملاقات میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سیر کی، جہنم کو دیکھا اور دنیا جہاں کی سیر فرمانے کے بعد واپس دنیا میں تشریف لائے. یہ واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے اور جس بات کو بتانے کے لیے میں نے یہ واقعہ معراج آپ سب کو سنایا وہ یہ تھی کہ اتنی بڑی اور عظیم سیر چند لمحوں میں ہوئی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو دروازے کی وہ زنجیر جو جاتے ہوئے ہلنے لگی تھی وہ واپسی پر بھی ہل رہی تھی اور جس مبارک بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے وہ واپسی پر بھی گرم ہی تھا. ذرا سوچئے کہ کتنے کم وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سفر طے کیا اور بہت سی جگہوں کی سیر فرمائی. سبحان اللہ. اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے جیسا کہ اللہ پاک سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. تو یہ تھا واقعہ معراج. اب آپ سب نے اس واقعے کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. یا پکڑ لیا. ببلو بھائی اب آپ بال پکڑ کر دکھائیں. یہ اوہو ابھی بتاتا ہوں. ببلو بھائی یہ کیا کر دیا؟ میں نے جان کر نہیں کیا. اب کیا ہوگا فیضان بھائی؟ کچھ نہیں ہوگا، بس ڈنک لگیں گے. ڈنک. چلو ساتھیوں انہیں مزہ چکھاتے ہیں.
ये तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। देख लेंगे इन्हें भी। अरे बबलू भाई छत्ते की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं छत्ते की तरफ नहीं भाग रहा, मैं गेट की तरफ जा रहा हूँ। बचाओ बबलू भाई बचाओ बचाओ। भाग गए बच्चे, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। फैजान भाई क्या पढ़ रहे हैं? आई मेरा मुंह। गुलाम रसूल भाई ने बताया था अगर कोई जानवर काट ले तो कुरान पाक की ये आयत अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून 11 बार पढ़कर काटने की जगह पर दम किया जाए तो इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दोनों को किसने बताया? फैजान भाई ने बताया था और इस मौके पर मुझे अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस याद आ गई कि जो किसी मुसीबत ज़दा की ताज़ियत करेगा अल्लाह पाक उसे जन्नत के जोड़ों में से 2 ऐसे जोड़े पहनाएगा जिसकी कीमत दुनिया भी नहीं हो सकती। सुबहान अल्लाह। मगर फैजान भाई आप कैसे दोस्त हैं? आपको उन मक्खियों से मुकाबला करना चाहिए था और अपने दोस्त को बचाना चाहिए था। अरे भाई मैं इतनी सारी मक्खियों का अकेले मुकाबला कैसे करता? तो फिर हम सब मिलकर उन मक्खियों को सबक सिखाते हैं। मगर कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। साथियों इधर देखो। यस। तो भाइयों सब तैयार हैं? जी हम तैयार हैं। मैं जैसे ही कहूँ तो नुमान भाई आपने छत्ते पर डंडा मारना है। साथियों आज आपकी जाबाजी का इम्तिहान है। हम सर धड़ की बाजी लगा देंगे, दुश्मनों को मजा चखा देंगे। यस सर। चलो साथियों। ये नुमान भाई ऐसा मत करें। सर ये बच्चा कौन है? इसे भी देख लेंगे। मुझे तो ये इनका दोस्त लग रहा है। ड्रेसिंग से तो ये अच्छा बच्चा लग रहा है। देखते हैं ये क्या बात करता है। नुमान भाई ये हिमाकत वाला मशवरा आपको किसने दिया? फरमान भाई ने। और आप सब लोग यहाँ शहद की मक्खियों से जंग करने आए हैं। ये देखिए गुलाम रसूल भाई, इन मक्खियों ने मेरा क्या असर किया है। ये शहद की मक्खियाँ आमतौर पर बिला वजह किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाती। जरूर आपने कोई शरारत की होगी। गुलाम रसूल भाई बबलू भाई से गलती से इस शहद के छत्ते पर बॉल लग गई थी। बस फिर मक्खियों ने अपना हिसाब बराबर कर लिया। हमें शहद के छत्ते से दूर रहना चाहिए। शहद की मक्खियाँ अपने घर की हिफाजत करती हैं, जैसे हम हिफाजत करते हैं। अब इसमें इनका क्या कसूर है? और ये शहद की मक्खियाँ हम इंसानों के लिए शहद तैयार करती हैं। इस पर तो हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि हम इन्हें नुकसान पहुँचाएं। और फिर ये मक्खियाँ दिन रात मेहनत करके फूलों का रस चूसती हैं और इस रस से शहद बनाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 44 लाख से 60 लाख फूलों के नेक्टर से तकरीबन 1 किलो शहद बनता है। और अगर मौसम अच्छा नहीं फूलों के एतबार से, और फूल बहुत दूर दूर भी हैं और दीगर फैक्टर्स भी इतने फेवरेबल नहीं, तो 15 से 20 मिलियन फूलों तक भी ये तादाद पहुंच जाती है, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा। सोचिए कितनी मेहनत के बाद हमें ये शहद हासिल होता है, और फिर ये शहद तो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कुरान पाक में शहद के बारे में इरशाद हुआ है फीही शिफाउल लिन्नासी, यानी इसमें लोगों के लिए शिफा है। और शहद का इस्तेमाल तो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद पसंद फरमाते थे। शहद तो वाकई मजे का होता है। मगर अम्मी अब्बू से पूछ कर ही हमें शहद को इस्तेमाल करना चाहिए। प्यारी मक्खियों, सॉरी, आइंदा मैं आपको तंग नहीं करूँगा। ये गुलाम रसूल तो वाकई अच्छा बच्चा है। चलो साथियों वापस चलते हैं, हमने इन्हें माफ किया। और शहद की मक्खियाँ ही नहीं बल्कि हमें सारे ही बेज़बान जानवरों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी अमल से इन्हें कोई तकलीफ ना पहुँचे। इंशाअल्लाह। सोसाइटी को जंगल बना दो, जंगल।
दुनिया जंगल को सोसाइटी बना रही है और बॉस सोसाइटी को जंगल बना रहे हैं। नॉनसेंस, यहाँ सोसाइटी से मुराद मुआशरा है, मुआशरा। बॉस करना क्या है, नेकी के काम से लोगों को रोकना है। चलो। कौन है? मारो, मारो, मारो। माल बनाओ, माल। तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। वो कैसे? वेल डन। बस ये मुआशरा खत्म और जंगल राज शुरू, जहाँ हमारा राज होगा। ये इन लोगों को नमाज की दावत देते हैं। नमाज पढ़ना इनका मामला है, लेकिन हमें नेकी की दावत तो देनी चाहिए। हम तो नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना। हाँ हाँ, अच्छा फ्रूट निकालता हूँ। अरे आप फिक्र ही नहीं करें। नमान भाई देखिए, फल फरोश कम तोल कर दे रहा है। ये ले। मेरे अंदर अभी बिल्कुल एनर्जी नहीं है, और वैसे भी हमें क्या फैजान भाई। शाबाश नुमान, शाबाश। नुमान भाई, हमें नेकी का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। हम खुद तो बुराई नहीं कर रहे हैं ना। क्या हमें बुराई से नहीं रोकना चाहिए? जी बिल्कुल, यकीनन हर मुसलमान को ऐसा ही करना चाहिए। गुलाम रसूल भाई, ये तो हर शख्स का पर्सनल मामला है। नोमान भाई, अगर नेकी का हुक्म नहीं देंगे और बुराई से मना नहीं करेंगे तो हमारी सोसाइटी तबाह हो जाएगी, लोगों को नुकसान पहुंचेगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये फल तो कम मालूम हो रहे हैं। बाबा जानी, मैंने तो 5 किलो लिए थे। अफसोस भाई, आजकल तो फल फरोश भी नापने तोलने में कमी कर जाते हैं। वेल डन। नोमान भाई देखिए, फल फरोश कम तोल कर दे रहा है। जी जी बिल्कुल, मैंने भी कल देखा था। फैजान भाई, ये तो सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है, इससे लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं? हमें नेकी का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। कुरान करीम ने बयान किया, वल मुअमिनून वल मुअमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकरी व युकीमूनस सलाह। और मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें एक दूसरे के रफीक यानी दोस्त हैं। भलाई का हुक्म दे और बुराई से मना करें और नमाज कायम रखें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। गुलाम रसूल भाई, हम नेकी का हुक्म कैसे दे सकते हैं? जी मेरा भी यही सवाल है कि हम फल वालों को कैसे समझाएं? इस रिसाले में अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, हम इन्हें पहुंचाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए। वैलुल लिलमुतफ्फिफीन। कम तोलने वालों की खराबी है। ऐ अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, आइंदा कम नहीं तोलूंगा और जिन लोगों का नुकसान किया है उनको उनकी रकम वापस करूंगा। बस ऐ अल्लाह, तू मुझे मुआफ फरमा दे। पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। अल्लाह, मेरे लग एक तो ये मेरे बच्चे। लग गई। नुमान भाई, कोई चोट तो नहीं लगी? मैं नहीं खेल रहा। खेल में तो ऐसा होता है। यानी दूसरे को गिरा दो और कहो खेल में तो ऐसा होता है। देखिए दोस्तों, हम सब के जिम्मे एक दूसरे के हुकूक हैं। फैजान भाई, अगर किसी बच्चे ने भी जानबूझकर धक्का दिया तब तो लाजमी नोमान भाई से माफी मांगनी होगी, वरना क्या गुलाम रसूल भाई? क्या शोर लगाया हुआ है, किसी के आराम का कोई ख्याल ही नहीं है। बाबू अंकल, यहाँ नहीं खेलें तो फिर कहाँ खेलें? ग्राउंड में खेलो, ग्राउंड में। पर सोसाइटी में तो कोई ग्राउंड है ही नहीं, कहाँ खेलें? अरे वहाँ है तो ग्राउंड, मार्ट के साथ। मार्ट से याद आया, मम्मा ने कुछ सामान मंगवाया था। जी मुझे भी मार्ट जाना था, चलें, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आ जाइए। ये कहाँ से आई? क्या बॉल टीवी में से निकल कर आई है?
आज मैं इनको देखता हूँ। बाबू अंकल बॉल दे दीजिए। बाबू अंकल बॉल दे दीजिए। और ये जो शीशा टूटा है, ये नुकसान कौन पूरा करेगा? बाबू अंकल, आपकी खिड़की का शीशा तोड़ने वाला लड़का तो भाग गया। बाबू अंकल मेरी बॉल तो दे दें। नहीं है बॉल, नहीं है, जाए। गुलाम रसूल भाई, आप तो सबसे अच्छे हैं। आप बाबू अंकल से कह दीजिए ना कि वो हमारी बॉल वापस कर दें। देखिए दोस्तों, हम सब सोसाइटी में रहते हैं। हम सब के जिम्मे एक दूसरे के हुकूक हैं। यहाँ खेलेंगे तो दूसरे परेशान होंगे। बाबू अंकल का जो नुकसान हुआ है वो कौन पूरा करेगा? याद रखिएगा दोस्तों, लोगों को एक दूसरे के हुकूक अदा करने होंगे, वरना क्या? रास्ता ब्लॉक कर रखा है। अजीब लोग हैं, रास्ते के हुकूक ही नहीं जानते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो गुलाम रसूल, इन लोगों ने सड़क पर मजमा लगाया हुआ है और रास्ता बंद कर दिया है। क्या रास्ते के कोई हुकूक नहीं है? जी बिल्कुल अंकल, रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। ये दूसरों की हक तलफी है और इस्लाम तो हमें हुक्म देता है, अगर कांटा या पत्थर भी हो उसको रास्ते से हटा देना भी सदका है। लेकिन अंकल एक बात अर्ज करूं, आपके बार बार हॉर्न बजाने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलीम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ या जबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुँचे। हमें अल्लाह के बंदों के हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना है, वरना क्या? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। इन शरारती बच्चों ने मेरा शीशा तोड़ दिया है। जी बाबू अंकल, बिल्कुल इन्हें ये नुकसान लाजमी पूरा करना चाहिए और आपको भी इनकी बॉल वापस कर देनी चाहिए, वरना क्या? वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से दरियाफ्त किया, अतदरूना मल मुफलिसु, तुम किसे मुफलिस समझते हो? सहाबा किराम अलैहिमुरिद्वान ने अर्ज की, हम में मुफलिस वो है जिसके पास ना दिरहम हो और ना ही कोई माल। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो कयामत के दिन नमाज, रोजा और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसने फलां को गाली दी होगी, फलां पर बोहतान लगाया होगा, फलां का माल खाया होगा, फलां का खून बहाया होगा और फलां को मारा होगा। बस उसकी नेकियों में से उन सबको उनका हिस्सा दिया जाएगा। अगर उसके जिम्मे आने वाले हुकूक पूरा होने से पहले उसकी नेकियां खत्म हो गई तो लोगों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे, फिर उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आज हुकूकुल इबाद की अदायगी में कोई कोताही हुई तो याद रखना, कल कयामत के दिन आपको वो हक अदा करना होगा। बाबा जानी, मम्मा कह रही है ये खजूरे रख लें, रास्ते में अगर इफ्तार का वक्त हो जाए तो इससे इफ्तार कर लीजिएगा। जी मेरी शहजादी, वैसे आप उदास क्यों हैं? आज भी इफ्तारी आप हमारे साथ नहीं करेंगे और क्या इन 2 खजूरों से आपका पेट भर जाएगा? अल्लाह की रजा के लिए जो रोजा रखते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए इंतजाम पैदा फरमा देता है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी आपकी इफ्तारी हमारी इफ्तारी से भी अच्छी हो। रख ले भरम मौला, रख ले भरम। तुम इंतहाई सुस्त आदमी हो, काम आता नहीं है, कोई हाल नहीं है तुम्हारा, बस तनख्वाह बढ़ा दो। अपने नौकर के साथ ऐसा बिहेव नहीं रखना चाहिए। भाई उसका नौकर है, जो चाहे कहे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए। मालिक अपने नौकर से ऐसा सलूक कर सकता है? नहीं कर सकता। कर सकता है। भाई झगड़ो नहीं, हम अभी फैजान भाई के घर जा तो रहे हैं, वहाँ गुलाम रसूल भाई भी होंगे, उनसे पूछ लेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ जाए भाई, अंदर आ जाए। फैजान भाई क्यों परेशान हैं? नहीं, बस इंतजार कर रहा हूँ डिलीवरी बॉय का। इफ्तार का कुछ सामान मंगवाया था। क्या बात है उसैद भाई, कुछ उदास है? जी
तुम इंतहाई सुस्त आदमी हो, काम आता नहीं है, कोई हाल नहीं है तुम्हारा, बस तनख्वाह बढ़ा दो। ये सब हुआ। गुलाम रसूल भाई, अगर नौकर के साथ सख्ती ना की जाए तो मालिक तो काम ले ही नहीं सकेगा। नौकर से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए और उसको कहा जा सकता है कि आइंदा वो गलती ना करे। जी ये बात। यहाँ तक तो ठीक है, हमारे यहाँ मामूली सी बातों पर मालिक सख्त बातें सुना देता है, उसको बार बार शर्मिंदा करता है। क्या ऐसा करना सही है? छोटी छोटी बातों पर सख्त बातें कहना, उसको बार बार शर्मिंदा करना तो अच्छी बात नहीं है। तंबी भी कर दे और तकलीफ भी ना पहुँचे। और ऐसे मालिक को चाहिए कि वो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को याद रखे। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और अर्ज की कि अपने खादिम की गलतियाँ किस हद तक माफ करनी चाहिए। उसने दोबारा पूछा, आप खामोश रहे। तीसरी बार उसके पूछने पर इरशाद फरमाया, हर रोज 70 बार। फैजान भाई, बस 8 मिनट रह गए इफ्तार में। बाबा जान, डिलीवरी बॉय अभी तक नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। भाई कहाँ रह गए? वालेकुम अस्सलाम। बस आपकी बिल्डिंग के नीचे लिफ्ट के पास ही खड़ा हूँ। मुझे फ्लैट नंबर बताइए। भाई लीजिए, आपकी इफ्तारी आ गई, इनको एड्रेस बता दीजिए। कहाँ है भाई साहब? मैं लिफ्ट के पास खड़ा हूँ, शायद लिफ्ट खराब हो गई है। तो भाई सीढ़ियों से आ जाएं। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। 4th फ्लोर है, इतना ऊपर भी नहीं है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 साल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी उन्हें डांटा नहीं। एक हदीस का मफहूम है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम में से किसी का खादिम उसके लिए खाना तैयार करे, फिर उसे लेकर हाजिर हो, जबकि उसने उस धूप और गर्मी को बर्दाश्त किया हो, तो मालिक को चाहिए कि वो उसे अपने साथ बिठा कर खिलाए। बस अगर खाना बहुत कम हो तो चाहिए कि उस खाने में से 1 या 2 लुक़मे उसके हाथ पर रख दे। कौन? डिलीवरी बॉय। या अल्लाह, या अल्लाह। ये क्या किया मैंने? ध्यान से बाबा, ध्यान से। तो भाई सीढ़ियों से आ जाएं। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। या अल्लाह, या अल्लाह। 4th फ्लोर है, इतना ऊपर भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या थी और मैंने क्या किया? प्लीज 1 मिनट रुकिएगा। बाबा, क्या मैं डिलीवरी बॉय को भी इफ्तारी में शरीक कर सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। आइए मेरे साथ रोजा इफ्तार कीजिए। तू ही मालिक बहारो बर है, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी आपकी इफ्तारी हमारी इफ्तारी से भी अच्छी हो। मालिक बहारो बर है, या अल्लाह, या अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो देखें, बबलू भाई क्या कर रहे हैं? जल्दी से कैमरा निकाले, इनकी वीडियो बनाते हैं। अब आएगा मजा। ये हैं बबलू भाई जो इस वक्त मार्टो में चोरी का सैंडविच खा रहे हैं। ये क्या कर दिया बबलू भाई आपने? मैं अभी सब दोस्तों को भेजता हूँ। आखिर मामला क्या है? अब आएगा मजा, अब देखो। वैसे क्या जबरदस्त वीडियो बनाई है। अफसोस, बबलू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब मैं तुम्हें बबलू के साथ नहीं देखूं। फैजान भाई, मुझसे बात नहीं करें। ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर मैंने किया क्या है?
क्या बात है, बबलू भाई दिखाई नहीं दे रहे? उन्होंने काम ही ऐसा किया है, अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मार्ट से सैंडविच चुरा कर खा रहे थे। समझ नहीं आया मामला क्या है। बबलू भाई से ऐसी हरकत की उम्मीद तो नहीं है। क्या आप सबने अपनी आंखों से देखा है? अपनी आंखों से क्या? बबलू भाई की वीडियो तो सोसाइटी के तमाम ही लोगों ने देखी है। क्या किसी ने बबलू भाई से पूछा कि क्या मामला है? पूछना क्या, वीडियो सबने देखी है। आप सबको बबलू भाई से पूछना चाहिए था। आप उनके दोस्त हैं, उनकी आदत को जानते हैं। वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि असल बात कुछ और ही होगी। तो फिर हमें बबलू भाई के पास जाना चाहिए। बबलू भाई, मामला क्या था? गुलाम रसूल भाई, आपका शुक्रिया, आपने मुझसे पूछा, वरना मेरे दोस्त तो मुझसे नाराज ही हो गए थे। मामला ये था कि इसको घर जाकर खाना। बस यहाँ से काट कर वायरल कर दो। मैं बाबा से आग बचा कर खा रहा था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने वीडियो बना ली और इस वीडियो को एडिट करके ये क्लिप वायरल कर दिया। आपने अपने दोस्त को तन्हा कर दिया। आपको बबलू भाई से मुताल्लिक अच्छा गुमान रखना चाहिए था। दोस्तों, मुसलमान को यही हुक्म है कि मुसलमान के साथ नेक गुमान रखे, बदगुमान नहीं हो। मुझे तो ये क्लिप फैजान भाई ने भेजा था। फैजान भाई, क्या आपने अल्लाह पाक का ये फरमान नहीं सुना? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू औ तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को अनजाने में तकलीफ ना दे बैठो कि फिर अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़े। इस तरह की कोई पोस्ट वीडियो शेयर नहीं करना चाहिए, और बिलफर्ज अगर ये वीडियो सच्ची भी होती तब भी किसी मुसलमान का पर्दा नहीं रखना चाहिए था। जी गुलाम रसूल भाई, ये तो मुझसे गलती हुई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बबलू भाई, मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके। गुलाम रसूल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बारे में नेक गुमान किया और मेरे दोस्तों से मुझे मिला दिया। आपने ये वीडियो क्लिप एडिट करके क्यों वायरल किया? हम तो सिर्फ तफरी करना चाहते थे। क्या दूसरों को तकलीफ देना तफरी कहलाता है? ये तो टैलेंट था हमारे दोस्त का। क्या दूसरों को अजियत देना, तकलीफ पहुंचाना, किसी की नेक नामी को नुकसान पहुंचाना, किसी की अच्छी शोहरत को खराब करना, किसी को बदनाम करना, क्या ये टैलेंट कहलाता है? हमें माफ कर दें, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। माफी तो आपको बबलू भाई से मांगनी चाहिए, लेकिन ये बताइए, सोसाइटी में उनकी जो बदनामी हुई, उनकी शोहरत को जो नुकसान पहुंचा, वो कैसे पूरा होगा? हम असल वीडियो एडिट करके दोबारा चलाएंगे और साथ माफी भी मांगेंगे कि हमसे गलती हुई। दोस्तों, किसी भी वीडियो को बगैर तहकीक के शेयर नहीं कीजिए और ना ही किसी के ऐप सोशल मीडिया पर बयान कीजिए, और झूठी वीडियो डालना तो सख्त गुनाह की बात और जुल्म है। बाबा जानी, मैंने पढ़ा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर तनावल फरमाते, फिर ईदगाह की जानिब तशरीफ ले जाते थे। रायका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें ताक गिनती में तनावल फरमाते, यानी 1 या 3। गुलाम रसूल, ये फितरे की रकम दावत इस्लामी के काउंटर पर जमा करा दें। बाबा जान, आखिर ये रकम आप दावत इस्लामी को ही क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि दावत इस्लामी हमारी रकम अतियात, ज़कात और सदक़ात को दुरुस्त जगह पर खर्च करती है। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। मेरे पास सबसे अच्छा पर्स है। आपकी पर्स से भी अच्छा। हाँ, आपका पर्स मुझसे भी अच्छा है। अच्छा, शाम में मिलेंगे। रायका, इस तरह अपनी चीजों की बड़ाई बयान नहीं करते, ये बुरी बात है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र करने से अल्लाह पाक और ज्यादा अता करता है। ये रायका, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। किधर है आप ही? इधर इधर। किधर है आप ही? आप किधर हैं? इधर। ये अभी पकड़ती हूँ, अभी पकड़ती हूँ। आपी मेरा पर्स गुम हो गया है। यहीं कहीं गिरा होगा रायका, मिल जाएगा। क्या हो गया रायका?
क्यों रो रही हैं? रायका का पर्स गुम हो गया है। मुझे मेरा पर्स चाहिए गुलाम रसूल भाई। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि वो देखें, अगर कहीं रायका का पर्स मिले तो ला कर दें। सब्र कीजिए, अल्लाह ताला इससे बेहतर अता फरमा देगा। कोई चीज अगर इधर उधर रह गई हो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर तलाश की जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल मिल जाएगी, वरना गैब से कोई उम्दा चीज अता होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईद का दिन है। वाह, ये तो पर्स मिल गया। इसमें जो पैसे होंगे आधे आधे बांट लेंगे। ये तो रायका का पर्स है, यहाँ कैसे आ गया? मुझे कनीज फातिमा आपी ने बताया था कि अगर किसी शख्स को रास्ते में पैसे या कोई चीज मिल जाए तो अगर उसके मालिक को पहचानता है और उस तक पहुँचा सकता है और छोड़ देने में जाया होने का अंदेशा है तो ऐसी सूरत में उठा ले और मालिक तक पहुँचा दे। क्लास में फर्स्ट आई है। ये आपका ही पर्स है ना? जी हाँ, ये तो मेरा ही पर्स है। आपको कहाँ से मिला? जब मैं पार्क में दाखिल हुई तो मुझे दरवाजे के पास मिला था। अल्लाह पाक का शुक्र है। आप चाहती तो ये पर्स रख भी तो सकती थी। नहीं, क्योंकि हमारी शरई जिम्मेदारी है कि हक उसके मालिक तक पहुँचाएं। भाई वाह, माशाअल्लाह, आपको तो आपका पर्स मिल गया और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।